A very good evening to guys. Welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Vikas Yadav. Presently, I'm working as a doctor. So today, I'm going to discuss about what after the MBBS we guys are searching for. So many of the MBBS graduates who used to go abroad and pursue their career as a medical practitioner, they're just very much confused whether where they have to go. So like some of the my colleagues also, they are just telling me I have to go Australia, I have to go US, I have to go UK. Some of are preparing for US family, some of are preparing for plab. So today we are going to do an interview with Dr. Akram Ahmed, who basically lived in Australia, and so he will be guiding us that what are the opportunities, how we can go to Australia and pursue our career as a medical practitioner. So now Dr. Akram will introduce himself and we'll go ahead in this interview. Thank you, Vikas. So my name is Dr. Akram Ahmed. So I am basically a lecturer here in Sydney, in Australia. So I basically make a blog and helping all healthcare professionals to migrate Australia. So basically, I am the founder of CEO of Academically. We provide basically A to Z assistance for Indian doctors. So easily they can migrate from India to Australia. They can pass both exams in India, and there are so many centers in India. And now in the next questions, Vikas is asked a lot of questions. We will, whatever you have the doubts regarding the AMC, most of the doctors only, they know about the USMLE and PLAB. Correct. People don't know the opportunity in Australia. So I am today going to explore, I can say this is one of the best opportunity for you if you are comparing the time and the money you are going to invest in US and UK. Again, the visa problem in those countries, and how it easier for Australia. We'll discuss in this video. Yes, Vikas, you can start. Yeah, Thank first you. of all, I just want to make clear to everybody, guys. You have seen me talking about US family, you have seen me talking about pleb. So this is really a very big issue because हम सारे जो भी MBBS graduates होते हैं, students होते हैं, हमको only दो exam के बारे में ही पता होता है. Either we are preparing for US family or we are preparing for pleb. So in this video, we are going to discuss about AMC. So what is it basically? From this exam we are going to get a job or we are going to get a residency in Australia. तो हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले होंगे कि कैसे हम मेडिकल ग्रेजुएट एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एज अ डॉक्टर सेटल हो सकते हैं. वो सारे क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास, जो मेरे काफी सारे कलीग्स और जो डॉक्टर्स हैं उन सब ने, और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के, जो हम डॉक्टर अकरम से पूछेंगे, एंड ही विल बी आंसरिंग ऑल दीस क्वेश्चंस गाइस. एंड इफ यू ऑल आर हैविंग एनी डाउट, you can ask me in the comment sections also. We are very surely likely to give all the answers of that questions. So we are starting with the question number 1. First question is that Dr. Akram, what is the average annual salary for a general practitioner in Australia? Because हम लोग सुनते हैं कि भाई यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, इंडिया से काफी अच्छा एवरेज पे स्केल है. सो व्हाट इज द एवरेज पे स्केल इन ऑस्ट्रेलिया अगर हम एज अ ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तो? मैं just बात करूँ simple GP की. I am just talking, if someone completed MBBS and passed the AMC and become a GP. So GP can earn in Australia up to 400,000 per year. But on average, यहाँ पर minimum 200,000 होती है dollar. If we convert it into maybe in Indian rupees, so it's going to be minimum, 1.5 to 2 CR per year. Guys, can you imagine? It's 1.5 to 2 CR per year, and in India we cannot imagine such such a huge amount. Yeah, it's not just the money, you are just working for 8 hours in Australia. In India, maybe you are a doctor, in my family, so many doctors, work maybe 15 hours, 12 hours is very, very common, it's like a work and life balance is very, very, you can give your time to your family, your kids. You are just working for 8 hours, you are not working. If you are working additional hours, your salary is going to be up. Correct. So first of all, I want to ask that only, Dr. Akram, what are the steps of AMC? Like, as you all know that कि हम we don't know much more about AMC. तो पहले तो यही डाउट आ जाता है कि what are the steps of AMC? Yes. पहले सबसे प्रश्न ये आता है कि भाई एलिजिबल कौन है बेसिकली AMC के लिए. जैसे कि USMLE में if you are studying from that medical degree you can. मगर यहाँ क्या है कि आपको डिग्री कंप्लीट करना जरूरी है, MBBS, right? Okay. And you must registered as a RMP in home country. अगर आपने MBBS किया है इंडिया से तो रजिस्टर्ड होना मस्ट है. पर आपने अगर रशिया, चाइना से किया फॉर एग्जांपल, या फिलीपींस, किसी भी और XYZ कंट्री से किया है, इवन अगर आपने FMG एग्जाम भी पास नहीं किया है, फेल भी हो गए इंडिया में, आप रजिस्टर्ड नहीं भी हो,
तो अभी आप एएमसी लिख सकते हो, बट कंडीशन ये है कि जो आपका कॉलेज, जो आपका यूनिवर्सिटी है, वो एएमसी की लिस्ट में होना चाहिए। जो वर्ल्ड ओके। मेडिकल जो डायरेक्टरी है उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगी, तो ये एलिजिबिलिटी है सिंपल सी। अब क्या होता है कि इसमें 4 स्टेप मैं कहूंगा कि ये कंप्लीट करने होते हैं आपको। फर्स्ट बेसिकली स्टेप 2 ही है। एक तो है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। ये तो हर जगह आप कहीं भी जाओगे, यूएसएमएलई या यूके, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी जगह, सब जगह डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपके ना। तो उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, आपका रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, ये जो जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। और फिर नंबर 2 स्टेप होता है, वो होता है बेसिकली बेसिकली ये हम कर देते हैं आपका, तो नो नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड अस योर डॉक्यूमेंट, वी विल डू दिस प्रोसेस फॉर यू, ओके। तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद एपिक एंड प्लस एएमसी, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, ये दाना हम कर देंगे आपका, तो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको एएमसी पार्ट 1, ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और 50% आपको करना होता है, आप पास कर जाते हैं इसके अंदर। और अच्छी बात ये है कि इसमें 30 से 50% तक क्वेश्चन वो रिपीट करेगा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन। तो ओके। करीब अप टू 50 से 70% न्यू क्वेश्चन आएंगे, मतलब ओल्ड क्वेश्चन में आप पास कर सकते हो एटलीस्ट, ओके। तो पासिंग करना इज नॉट ए प्रॉब्लम। और इसको पासिंग जो होता है वो 60 से 80% तक पास होता है एएमसी पार्ट 1 का, ठीक है। तो आपने एएमसी पार्ट पास किया, प्लस आपको फिर एक इंग्लिश का टेस्ट पास करना होता है, जैसे आईएलएस हो गया, या पीटी हो गया, या ओईटी हो गया, या टॉफल हो गया, कोई भी एक इंग्लिश का टेस्ट पास करना है। और उसके बाद में फिर आपको एएमसी 2 पास करना होता है। तो ये स्टेप्स हैं। अब जॉब का एक कुछ आपके मन में हो, सर आपको जॉब कब मिलेगी, हम्म। तो आपके पास 2 ऑप्शन है जॉब के। एक तो ये कि आपने एएमसी पार्ट 1 किया प्लस इंग्लिश कर लिया, तब भी आपको जॉब मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया में। उसका नाम होता है जेएमओ, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, यानी ओके। कि आप फुल्ली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं हो, क्योंकि आपने अभी पार्ट 2 क्लियर नहीं किया है। करेक्ट। तो आप किया, जैसे हम लोग, जैसे आपने एमबीबीएस किया, तो आप जैसे जैसे आप इंटर्नशिप करते हो, तो आपके पास पूरी पावर नहीं होती कि आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन दे सको, है ना, राइट। करेक्ट। तो कोई करेक्ट। आपका राइट। कोई पीजी है या कोई आपका लेक्चरर है, उसके अंडर में आप लोग करते हो, है ना। तो या सेम यहाँ पर भी क्या है कि आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन दी गई है पार्ट 1 के बाद में, आप प्रैक्टिस कर सकते हो अंडर सुपरविजन ऑफ आरएमपी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उसमें अराउंड $70,000 पर ईयर की सैलरी मिलती है, और साइमल्टेनियसली आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो अपने पार्ट 2 के लिए, ठीक है। ओके। एक ये रूट हो गया आपका। या फिर अभी एक गुड न्यूज ये है कि पहले क्या था कि आपको पार्ट 1 इंडिया से करने के बाद पार्ट 2 करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना मस्त था। ओके। अभी कोविड के बाद से वो रेस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई है। पार्ट 2 भी आप अपने इंडिया से लिख सकते हो और उसके बाद में जा सकते हो। अब जब पार्ट 2 आपने कर लिया, यस, Want to clear one thing guys, those who are watching this, कि जैसे आप चाहे USMLE लिखो चाहे प्लैब लिखो, for both USMLE and pleb, if you have cleared USMLE 1 or pleb 1, after clearing USMLE 1 and pleb 1, you will not get any jobs in UK or America. I'll just confirming it. So what Dr. Akram has said now, it's a very important thing कि after clearing AMC 1 you are going to get jobs in Australia, so this is the most beneficial point of giving AFNC, so just note it. And the another thing, if you have cleared USMLE 1 and pleb 1, then for USMLE 2 and pleb 2 you have to go to the same countries. And whatever the Dr. Akram has said now is that now you don't need to go to Australia to give AMC2, so that you can give in your home country. So these are the very important 2 big changes which we are going to get in AMC. So these are the highlights, what I can say. Yeah. यस। So I just बेसिकली want अगर to ask आपने, one more question, Dr. Akram. What is the duration of the AMC MCQ exams? And how frequently तो we can give that exams? यस, इफ वी कंपेयर के प्लेब में 2 साल का ही वेटिंग चल रहा है अगर आपको Yeah. प्लेब लिखना है, राइट। ऑस्ट्रेलिया के लिए एएमसी एवरी मंथ होता है, Okay. एक्सेप्ट दिसंबर और जनवरी, 1 साल में 10 बार होता है। और इंडिया में इसके कम से कम 15 सेंटर हैं, इतने सेंटर्स हैं। मैं बताऊं आपको, दिल्ली में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, मतलब एनसीआर में 3 है। और Okay. फिर जो इधर चंडीगढ़ में है, और बहुत सारे सेंटर हैं इंडिया में, बहुत सेंटर्स हैं, उसमें आप कभी भी वेन एवर यू आर कॉन्फिडेंट एंड रेडी यू कैन राइट द एग्जाम। हम बेसिकली 4 मंथ की कोचिंग कराते हैं इसका, जो है एएमसी पार्ट 1 का। और Okay. हम बहुत सारे प्रैक्टिस कराते हैं आपको उस एग्जाम के लिए। इवन जो हमारे लेक्चरर्स हैं वो इंडियन है, जो पुणे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस एमडी करके गए, उन्होंने भी सेम जर्नी करके गए, एएमसी 1 एंड इंग्लिश एमडी 2, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये Okay. सारी जर्नी आपको बहुत इजी हम लोग कराते हैं आपके लिए। Okay. So then I just want to ask one more thing. So for English, we have to compulsory pass one English exam. Either it may be a PT or it may be IELTS exam. Am I right? यस, तो इंग्लिश की भी हम लोग कोचिंग कराते हैं, उसकी भी वो भी हम ही कराएंगे आपको, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। बेसिकली Okay.
कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करना है उसको, वेदर इट इज मेडिकल डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सबका एक वहाँ पे एक बॉडी है, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपरा, ओके ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक एजेंसी है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ओके तो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है वो है 7 इंडिविजुअल बैंड इन IELTS, ओके, ओके और 65 इंडिविजुअल स्कोर इन PTE। तो PTE बहुत ही इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट IELTS दोनों बहुत फिजिबल है डॉक्टर्स के लिए, कोई इतना टफ बात नहीं है। Want to ask one more thing, Dr. Akram, because as you know that we are MBBS doctors, so we can just ask you one more thing: कि why should we choose AMC over USMLE or PLAB? What are the वही तो advantages मैं of choosing this? है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आप महीने में लिख सकते हो, वहाँ 2 साल की वेटिंग चल रही है प्लैब में, और प्लैब Okay, 2 साल आपने वेटिंग भी किया तो आपने श्योरिटी नहीं है कि आपको वहाँ आज के में जॉब मिलेगी, और जॉब के okay, बाद भी वहाँ 5 साल रहना पड़ता है, तभी आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है यूके की। okay, 5 ईयर यू मस्ट स्टे 5 ईयर, वर्क वीजा 5 साल आप रहोगे तो भी आपको रेजिडेंसी मिलती है, फिर सिटीजनशिप मिलती है 8 साल के बाद में यूके में। okay. And Australia ऑस्ट्रेलिया में में क्या है? आपने Part 2 आपने पास किया AMC 2, Okay, फिर आपको एक साल रेजिडेंसी यहाँ पे करनी पड़ती है। तो रेजिडेंसी में बेसिकली ये जॉब होती है, तो हाउसमैनशिप बोल लो या रेजिडेंसी बोल लो, और इसमें सैलरी होती है 130,000 पर ईयर। तो इंडियन रुपीज में मैं कन्वर्ट कर दूं तो शायद 80 लाख रुपीज के आसपास। बेसिकली दिस इज ए, आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अभी GP बने भी नहीं हो, ठीक है। yeah. तो ये सैलरी आप मतलब दिस इज नॉट योर सैलरी बेसिकली, ये आर दे हाँ, आर गिविंग यू, यू आर जस्ट वर्किंग, मगर ये बहुत हाई सैलरी है, मैं कहूँगा इतनी लो, बहुत हाई है, 130,000, obviously, ओके। obviously. तो उसके मिलने के बाद जैसे ही आपने एजेंसी किया, आप एलिजिबल हो, PR को एप्लीकेशन करनी है, आपको 1-2 महीने मिल जाएगी, और फिर आप, आपकी जो फैमिली है ना, आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी किड है, कोई डॉक्टर Hmm. की शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं ना, तो Yeah. फैमिलीज में क्या बेनिफिट है, बच्चों की एजुकेशन फ्री अप टू 12, ठीक है, Okay. हेल्थ केयर इज फ्री, इफ यू आर गोइंग फॉर US यू नीड टू बाय इंश्योरेंस, Hmm. राइट। So the health insurance you need to buy, and you need to pay show some fund, 10 Yeah. lakh, 20 lakh in your account when you are Australia, no need to show all these accounts, and most likely if you want to do something, any like, upgradation for yourself, any short workshop or anything, hospital will pay, they will send you yearly or twice. Lot of basically advantage in इंडिया का अभी बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का। हमने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के PM ऑस्ट्रेलिया इंडिया आए थे, आए थे, हमारे correct. PM भी अभी 2 बार चक्कर लगा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। Yeah. तो अभी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो दिस इज द राइट टाइम में कहूंगा किसी डॉक्टर को मूव करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। And what are the visa process after AMC2, Dr. Akram? ये तो आप डायरेक्टली बेसिकली PR वीजा, वीजा मिलने में प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। इवन AMC 1 के बाद में क्या होगा, उसमें आपको वर्क वीजा पे जाना पड़ेगा, कोई Okay. कंपनी आपको हायर करेगी और फिर वो आपको वीजा देगी, ठीक है। मगर आपने PMP 2 कर लिया तो आपको PR भी अप्लाई करते हो, आप वर्क वीजा भी अप्लाई कर सकते हो। तो डॉक्टर के लिए 7-8 टाइप का वीजा है, वीजा की प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। मैं बताऊँ नंबर, सब क्लास 190, सब क्लास 189, सब क्लास 491 एंड 482, 494, 407, ऐसे बहुत सारे वीजा है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि ये Okay. हर लिस्ट में आता है, क्योंकि इतनी शॉर्टेज है इनकी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये लोग फार्मूला, जो WHO का फार्मूला होता है कि 1000 पॉपुलेशन पर 2.5 डॉक्टर होना चाहिए, Yeah. ये उसको उनको मेंटेन करना है। हाई इनकम कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। Mm-hmm. तो इसके लिए इनको, इनके जो ग्रेजुएट्स हैं लोकल, वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, इसलिए Okay. IMGs की यहाँ हाई डिमांड होती है, स्पेशली इन द रीजनल एरिया। रीजनल एरिया क्या है कि 3 सिटी को अगर आप छोड़ दो, सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन को छोड़कर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहो, सारा रीजनल एरिया है। Okay. Yeah, so these are all the steps, about AMC and everything which we have discussed in this video, guys. So I will just, elaborate in a short thing. So जो बच्चे MBBS कर लेते हैं, जो फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, जो फॉरेन से, अपना डॉक्टर का करियर परस्यू करना चाहते हैं, सो एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो जो आप जैसे USMLE एंड प्लैब लिखते थे, वैसे अब आपको AMC एग्जाम लिखना है, जो 2 पार्ट्स में था, जैसे डॉक्टर अकरम ने हमें एक्सप्लेन किया, AMC 1 एंड AMC 2। यहाँ पे आप आफ्टर AMC 1 भी डायरेक्ट जॉब ले सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो हमें डॉक्टर अकरम ने बताया। एंड आफ्टर AMC 2 ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट जॉब्स। वीजास की सारा उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, वो भी हमने देख लिए हैं गाइस। एंड एवरीबॉडी नोज दैट कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन रिलेशनशिप्स आर क्वाइट गुड नाउअडेज।
that is also the beneficial and it's the right time. if अगर आप में से हम में से कोई भी MBBS graduate doctor जो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहता है, so academically basically provides you everything guidance about this, you can just contact them. I will be providing their link and everything in the description box. Am I right, Dr. Akram? Everybody can contact you. Yes. So anybody is having any doubt, you can directly contact to Dr. Akram's team, and academically will guide you throughout all this journey, to moving to Australia, to base there, to preparing for the exams, to visa processes, and guidance for the AFRA registration, everything, whatever the doubts you are having in your mind, and so everything will be cleared by Dr. Akram. So now I will, Dr. Akram, what you want to say in the last, you please? At the end, I just want to say, if you as a student, in your mind might be so many questions, like US, मैं US चला जाऊँ, UK चला जाऊँ, या Australia या Canada. So you have to basically choose 3 important points, एक तो ये है कि easy process कहाँ है, मैं कहाँ easily एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है. तो ऑस्ट्रेलिया का जो पासिंग रेट है वो है 60 to 80% पार्ट 1, बहुत ही ईजी है, तो टफ एग्जाम नहीं है. आप अपने नीट पीजी से भी अगर कंपेयर कर लोगे ना, तो मैं कहूँगा कि उससे भी इजी पड़ जाएगी, ठीक है. तो इजी प्रोसेस है, और जॉब मिलना इजी है नहीं है, और तीसरा होता है कि वीजा आपको मिलेगा या नहीं. तो तीनों ही हम कंडीशन में अगर हम कंपेयर करें यूएस और कनाडा से और यूके से, तो उन कंपेरिजन में जो है ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है. तो मैं कहूँगा अगर आपको कहीं भी जाना है विदेश में, तो डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलिया आप चूज करते हो, तो वो अपनी एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है. या एंड एक थिंग और मैं क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, इट्स क्वाइट एविडेंट नाउअडेज. आप लोगों ने देखा होगा, इट वाज इन न्यूज़ ऑफ लास्ट वीक आई कैन से, इन दिल्ली एक नॉन एकेडमिक JR की पोस्ट निकली थी, एंड द पोस्ट आर ओनली ऑफ आई थिंक सो 50 सीट्स वर देयर. And in India, there is a huge rush of MBBS students. More than 500 students has gone there to give interview. So you can imagine now the condition of doctors in India. It's a real incident, Dr. Akram. I'm not telling it. Everybody can search it on, either on Twitter and Google, and everywhere it's there. Only 50 seats are there for non-academic JR, and more than 500 students has gone there to give interviews. So you can see the competition, you can see the struggle after MBBS, guys. I'm not, discouraging you or something like that. Life of a doctor in India is really, really not a, like it previously it was, previously after doing MBBS, we guys are like that, okay, we are earning a huge amount of, amount, and we are just living a life. But now it's not possible like that, because there are so many of MBBS doctors which are just doing their degrees and they are not getting proper jobs. So this is the right time, what I can say, this is the right thing what we can, to pursue a best future career. And so everything, as Dr. Akram has explained also, and I have given you the recent live example which is facing in India. This is the condition of now. After 1 or 2 years, you'll see that MBBS is really a new BTech, as we all see na, ki, after doing BTech, everybody you are just roaming either and either. So the same condition will be there in India also, because there are so n number of seats, the seats have crossed more than 1 lakh. Every states are opening medical colleges in every district, so there are a lot number of seats, a lot number of MBBS graduates, So I really like this efforts, and इसीलिए मैंने ये podcast interview Dr. Akram के साथ किया, because so many of my friends and colleagues are there which are very much confused कि whether we should be live in India or not, and if we don't want to live in India, then what are the options, because USMLE and PLAB नहीं निकल रहा है तो क्या करें, what are the other options, what are the alternatives. So that was the best thing, and academically, so I'm very thankful for you, Dr. Akram, and academically, you gave me this chance to interview you, and so in any way, if I can help any of the MBBS graduates, that will be a very fortune of mine. So thank you very much, Dr. Akram. Thank you, Dr. Vikas. Thank you. Bye. Yeah. Bye. So take care, guys. If you want to know anything, any detail about AMC, so you can just contact the team of academically. All the details I will be giving in the description box. So yeah. Bye, guys. Take care. Keep hustling. Keep rocking. Please do subscribe this channel, and you will be getting further more such type of videos. Bye.